Good evening, sir. First of all, thank you for giving this opportunity to introduce myself. Myself is Anirudh Patham, and I'm basically from Indore, Madhya Pradesh. I completed my graduation in 2022 from the college that the name is Chamli Devi Group of Institution, which is situated in Indore. And currently, I am doing a internship in Unix Civil, which is run by Mr. Engineer Akash sir, and that's all. Okay. What you're learning there in that internship? So basically, at other places, Hmm. they are just doing. There are so many institute, but they are only learning only software, not practical skills. Here we here we understand about the theory concept also, practical skills also. So it is the biggest advantage of this institute. So that's we join this institute and doing internship. So basically, right now you're learning the software Stat Pro as per your resume. Yes, sir. Can you just tell me? I don't know anything about Stat Pro. Can you just tell me what are the things you can do in Stat Pro and how it is useful for me? Sir, basically, the full form of STAT is the Structure Analysis and Design Program. Basically, this structure is useful for analysis and designing of structure. Uh, and We can do analysis from this software. And in this software, we can do wind analysis, earthquake analysis, and we can do steel structure and RC structure, both in this structure. We can do analysis and design also. And uh, What we is there's analysis? What is analysis? So from analysis, we get the results like shear force, bending moment diagram, what is the maximum displacement of the member. Member basically like it is a whether it's a beam or a column. If I want to know that my beam, if suppose there is a beam, if suppose this is a beam, if there is an axial load uh, acted on this beam, so how much this beam bends, we can see from their software. And from that analysis we can design the structure. Basically the design means we know how much amount of C we provide on the structure if it is RC structure, and how much it requires to give the maximum strength so that our structure becomes safe. So it is the biggest advantage of uh, analysis, and we can do analysis and design from the start. Difference between analysis and design. So analysis, it is a in analysis, we get the structure, shear force, bending moment diagram, maximum displacement of the beam and column, and from designing, we get the number of bars, how much size of the column, how much size of the beam we require to save that structure. ऐसे बोलो इसको. Analysis is the result of inputs. जो भी हमने इनपुट किया था उसका रिजल्ट मिलता है ना. Yes, Analysis sir. is the result of input and design is the output of input. Okay, sir. ठीक है. डिजाइन एनालिसिस क्या है? इनपुट इनपुट का ही तो एनालिसिस करते हो ना, लोड का, Yes, sir. कॉलम का, जो भी तुमने डाला, राइट. तो एनालिसिस इज द इनपुट और सॉरी रिजल्ट ऑफ इनपुट्स एंड लाइक डिजाइन इज द आउटपुट ऑफ इनपुट. जो भी हमने इनपुट किया था उसका आउटपुट जो है, क्योंकि कॉलम डिसाइड हो गया, साइज डिसाइड हो गया, यही होता है ना. तो Yes, sir. यू कैन से लाइक दिस, तो इट विल बी बेटर. ओके, वेल व्हाट इज शियर फोर्स, मिस्टर अनिरुद्ध? Sir, shear force is the actual force which act at the section, and basically it's a total force acted on that section from this section left hand side and right side. Very good. How much you rate yourself out of 10 in Stat Pro? In State Pro, I rate 7, sir. 7. And how many lectures you watch? 41, sir. 41. Can you just tell me, why you not just give you 10 out of 10? Or 3 you just, you have, like you just said, 10 out of 7. So where you feel ki this is my weak portion, now I need to work here? Sir, I give myself 7 because
I deduct a 3 star because of my speed. Okay. My project speed is very slow, and sometimes I become very frustrated, and that analysis not doing how this do. So that's why I understand the concept, sir. But now, but the project speed, going fast project, so that is my biggest weakness, sir. Okay, good, very good. Thank you so much, Ranit. This was nice to talk with you. काफी अच्छा improve हुआ last time से. Thank वेरी you, गुड. sir. ओके, अब देखो तुम्हारा कैमरे के सामने जो विजिबिलिटी है ना, कॉन्फिडेंस के साथ आ रहा है. यही चाहिए था अपने को. ठीक है, पहले के कंपेयर में अभी कॉन्फिडेंस धीरे बढ़ा. ये तुम्हारा वॉलपेपर बड़ा अच्छा कैसे लगा तुमने? सर जूम में ही है। अच्छा, ये मतलब कि 3D वॉलपेपर ये बाय डिफॉल्ट है क्या ये वाला? हाँ सर, डिफॉल्ट है। अच्छा. सर जैसे हम ये जो रिकॉर्डिंग का दिखा है कैमरे का, उसके साथ में एक आइकन होगा। अच्छा, व्यू करके एक ऑप्शन है मेरे सामने, नीचे है. सिलेक्ट माइक के सामने ही, माइक के भाग राइट हैंड माइक. साइड में आपको कैमरा दिख रहा होगा। हाँ, कैमरा दिख रहा है. उसके बाजू में एक एरो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक देखो, कीजिए। ब्लर माई अकाउंट दिख रहा है, उसके बाद वर्चुअल चूज वर्चुअल बैकग्राउंड. बैकग्राउंड। हाँ सर, इस पे ओके. जाइए। हाँ, इस फिर पर आपको डिफॉल्ट दिख रहे होंगे सर, बैकग्राउंड इफेक्ट्स करके बैकग्राउंड वर्चुअल इफेक्ट्स दिख बैकग्राउंड। रहा है. हाँ, उसमें एक तो दिखा रहा है कि वीडियो फिल्टर बैकग्राउंड, वर्चुअल बैकग्राउंड अवतार. हाँ सर, वर्चुअल बैकग्राउंड में मिलेगा सर। वर्चुअल बैकग्राउंड में हमारे पास यार एक्चुअली तीन ही है, नन, ब्लर और जो दो हमने सेट किया हुआ है. अच्छा, तो ये हो सकता है शायद डाउनलोड करना पड़े, डाउनलोड करना पड़ेगा ना. या अपडेट करना पड़े सर, कुछ अपडेट आया हो आपके इसमें सर। हो सकता है. डाउनलोड मुझे लगता है तुम्हारे कई बाई डिफॉल्ट कई ढेर सारे हैं, बस एक ही है क्योंकि हमारे में तीन ही दिख रहे हैं टोटल. सर मेरे इसमें 5 है सर। ओके, तो हो सकता है बाई डिफॉल्ट होगा ना. यस चलेगा. सर। थैंक यू अनुरुद्ध, दिस वाज नाइस टू टॉक विद यू. थैंक यू। ओके. ओके, नाउ मिस्टर नरेंद्र. मिस्टर नरेंद्र रेडी? Yes, sir. Okay, very good. Now Narendra is ready now. Very good, Narendra. Hey, you have a very beautiful background. Thank you, sir. Okay. Uh, what are the important concept required for building high-rise buildings? Sir, majorly concept of load calculations, wind analysis and seismic analysis, dynamic analysis are majorly required for the high-rise structures, sir. Okay. What do you think? What is the scope, future scope of structure engineers? Sir, there is a huge scope for structural engineers as development majorly based on the infrastructure of any country. There will be a huge scope for structural engineers, sir. Okay. Which IS code we use for wind analysis? Sir, IS 875 part 3 is used for wind analysis. And how to calculate wind pressure? Sir, wind pressure is calculated, design wind pressure is calculated by the formula Vz equal to Vb into K1, K2, K3, where Vb is a basic wind speed, K1 is a risk coefficient, K2 is a terrain factor, and K3 is a topographic factor, and there will be a K4 also, which will be based on the tsunami occurring in that area. Cyclone zone. Cyclone, yes, sir. Okay. Can you just explain more about K1 and K2 and K3? Sir, K1 will be taken from the code book directly based on the wind speed of that area. Sure. And yes, this sir. is risk coefficient, na? Risk coefficient is taken based upon the Life of building. yes, sir, life of, and K2 will be taken upon based upon the wind speed and category of that building and class of that building, sir. What type of category? Sir, category will be based upon the exposure condition and
height of the building surrounding to that building. It is defined as it will be defined as category 1 and 2 and 3. And class, in the class, the building is differentiated based on the highest dimension. It is classified in 3 classes, sir. Okay. And K3? K3 is a topography factor, sir, which will be determined based on the tilting of the building to the horizontal. Correct. Very good. What is the work of shear wall, and what are the different types of shear wall? Sir, shear walls major purpose is to resist lateral loading, and different types of shear walls are 4 type of shear wall: column supporting shear wall, HCT infill shear wall, rectangular shear wall, and one more I am unable to get it, sir. No issue. Minimum thickness and maximum thickness, how much we can provide in shear wall, and where is the best location in the building for providing the shear wall? Sir, minimum thickness is 150 mm and maximum is 400 mm. Sir, shear wall, if you provide shear wall, if you provide it symmetrically in the building, it will be best. And majorly, if you provide at the center of the building, it will be safer, sir. Very good. Narendra, how much you rate yourself out of 10 in StatPro? Sir, I rate myself 9 out of 10, sir. 9 out of 10 in StatPro, right? Yes, sir. Okay. Which company made this software StatPro? Sir, basically, it was developed by two persons, and it was purchased by Bentley. Very good. Thank you so much, Naren. This was nice to talk with you. एंड काफ़ी अच्छा गया आपका इंटरव्यू। अभी पीछे से देखिए काफ़ी चीज़ें ना मुझे इम्प्रूवमेंट में आ रही हैं, है ना? आपको भी लग रहा होगा। मैंने Yes, sir. स्टार्टिंग के पहले क्वेश्चन में नर्वस करने की कोशिश किया आपको, लेकिन आप बच गए। होता क्या है जनरली, जब एक बार नर्वस हो गए ना, सारे क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं। लेकिन Yes, मैंने sir. देखा कि तुम ना दोबारा पहला क्वेश्चन में तुम फंसे जरूर, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चंस को तुमने चेहरे पर सिकन थोड़ी आके फिर मेंटेन हो गई। और जनरली होता क्या है, जब पहला क्वेश्चन गलत हो गया ना, तो आदमी नर्वस होकर दूसरा भी गलत कर देता है, तीसरा भी गलत कर देता है। ये नहीं किया तुमने, बहुत अच्छा किया। और लेक्चर्स तुमने कितने वॉच कर लिए? 41 42 तक वॉच किया, सर। वेरी गुड, थैंक यू सो मच नरेंद्र, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू, सर। ओके, ठीक है गाइस, काफी अच्छा इंटरव्यू दिया इन्होंने। नाउ लेट्स कम विथ मिस्टर यश, एंड देन आफ्टर यश प्रथमेश, देन सृजन, देन उमर। मिस्टर यश रेडी? ओके ओके, यस हो सके तो थोड़ा सा अगर क्या लैपटॉप पर हो? नहीं सर। मोबाइल पर हो? सर। कोई मोबाइल के नीचे कॉपी लगा लो या किताब, जो कुछ ऐसा हो कि थोड़ा सा ऊंचा हो जाए, मैं तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए उस पे। ठीक है सर। हाँ, करने को गाइस हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट इनकी हैबिट वैसे ही रहे जैसे इंटरव्यू में रहना है, ठीक है? तो फॉर दैट रीजन आपका हाँ परफेक्ट, ठीक है। क्या होता है कि अगर हम सामने ऐसे कैमरा के सामने है तो आई कांटेक्ट अच्छा बनता है। दूसरा, हमें झुक के नहीं देखना पड़ता है गाइस, कि ऐसे झुक के ऐसे देखोगे, हो सकता है सामने वाले को ये लगे कि तुम पढ़ के आंसर कर रहे हो, ठीक है? तो ये आपके पास न रहे तो बेटर रहता है, ठीक है? और क्या बोलते हैं, बट कोई बात नहीं, जस्ट टेक रेस्ट एंड जस्ट आप देखिए कैसे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इसका ध्यान देना। यस, इंटरव्यू जब देना तो ऐसे सामने, जैसे मेरे बैठा हूँ ना, ठीक है? दिस इज द राइट पोजीशन फॉर गिविंग योर इंटरव्यू। अब इससे क्या होता है कि हो सकता है मैं नीचे सही से पैंट मैंने नहीं डाला हो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, है ना, तो भी पता नहीं चलेगा। हो सकता है मेरी शर्ट सही से प्रेस ना हुई हो, वो भी रीड नहीं हो पा रहा है ना? और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपके चेहरे पर, मेरे अभी देखो मेरे चेहरे पर फोकस होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? तो जब चेहरे पर फोकस होगा, आदमी चेहरा तो मेंटेन करके ही रखता है इंटरव्यू में, है ना?
तो इस पर्सपेक्टिव sir. से हमें यहाँ तक का भाग जो है शरीर का आए तो बेटर रहता है, ठीक है। नाउ Okay. मिस्टर यश, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। First of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Yash Pade. I am from Ahmednagar. I did my graduation in civil engineering. After that, I completed my master's in structural engineering. कीप इट अप, कीप इट अप, कंटिन्यू। Yes, sir. That's it. You just need to explain about your internship. Right now, doing my internship in Unix Civil. And that internship, That internship is basically a structural course. यस, कौन कितने मॉक दिए तुमने अब तक में वीडियो वाले? Sir, this is first mock. फर्स्ट मॉक, And राइट? yes, sir. It's okay. First mock of video. Just chill, relax. Okay, not matter. Clear. I'm just tracking your face ना. मुझे फेस से ही आइडिया लग गया कि तुम्हारा फर्स्ट मॉक है in that Yes, sir. like video callings, right? तो कोई Yes, नर्वस sir. नहीं होना, रिलैक्स, ठीक है। बस हमें कैसे ना कि ये समझना है कि हमारे कैमरा तो है ही नहीं, पहली बात तो ये समझ लो। दूसरी बात ये समझना है कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो अपने बारे में कितना बता सकते हैं। जितना बताएंगे उतना ज़्यादा हमारे करियर के लिए बेटर है। ओके, डोंट वरी, Okay. हम प्रैक्टिस करने बैठे हैं यहाँ पर। अगेन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड जस्ट एक्सप्लेन अबाउट योर इंटर्नशिप की इन दैट इंटर्नशिप आई एम गोइंग टू लर्न स्टैट प्रो, ऑटोकैड, ईटैब्स, जितना आपको पता है जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन। अगेन इंट्रोड्यूस Uh, योरसेल्फ। okay, thank you. First of all, thank you for giving me this opportunity. I am Yash Pade. I am from Ahmednagar. I did my graduation in civil engineering. After that, I completed my master's in structure. Right now, I am doing internship in Unix Civil. In that internship, I learn about uh, softwares like StatPro, uh, AutoCAD, StatPro, RCDC, Stat Foundation, and it is going for after we details and Rivet is remaining now. Okay, In, what? in Okay, it's okay. How to calculate seismic pressure means which IS code we use for seismic analysis? 1893, IS 1893 is for earthquake analysis. Okay, and In the, how to calculate seismic pressure? seismic pressure, I didn't recall it. I want to recall for wind pressure. Seismic pressure, how to calculate? How many seismic zone in India? There are 4 zones: Zone 2, Zone 3, Zone 4, and Zone 5. Previously, Zone 1 and Zone 2 are merged so that Zone 2 is created. Okay. What is the zone factor of zone 3? I didn't recall it, sir. Okay. In lift area, which type of shear wall we use? Generally, we use 4 types shear wall. Core type shear wall. What is the minimum thickness of shear wall we can provide? 150 mm is minimum. 150 mm. 400 mm. How many lectures you watched in StatPro? Yes. 40 lectures, sir. 40 lectures you watched. Okay. Why should I hire you? Because I need to learn new things quickly and I can give my best to the company. कोई बात नहीं, ठीक है। तुम नर्वस हो रहे हो, अभी मैं तुमको आगे नहीं ले जा रहा हूँ, ठीक है। देखो कोई बात, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हाँ, वेरी गुड, जस्ट कीप इट अप, इसी को जारी रखे ना। अभी देखा तुमने नरेंद्र ने कितना बढ़िया दिया, अनिरुद्ध ने कितना बढ़िया दिया। पता है क्यों दिया? इनका ये शायद तीसरा मॉक होगा, कमेंट करके बताना नरेंद्र एंड अनिरुद्ध, शायद तीसरा होगा, दूसरा तो श्योर है। तीसरा है सबका, तीसरा है। तो जब हम बार बार करते हैं ना तो हमारी हैबिट हो जाती है ना। Okay, okay. And one more question, just explain that. What is shear force? Shear force is the summation of all forces in structure. Summation of all forces with
along with the reaction in a horizontal member. If we consider section in left or right. Okay. Where you want to see yourself in upcoming 3 years? In a successfully successfully structural engineer as a structural engineer. Okay. Where I can. ओके, थैंक यू सो मच। यस, दिस वाज नाइस टू टॉक विथ यू। बहुत बढ़िया है, तुमने डरा नहीं, तुमने इंटरव्यू को अटेंड किया। इसी को कंटिन्यू रखो, बस 3-4 मॉक दे दो। ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ना, तुम्हें लगेगा तो यार ये तो यूज्ड टू वाला काम है। ठीक है सर वो बात हुई थी ना आपसे, हाँ। वो हॉस्पिटलाइज थी दीदी, उसकी वजह से मॉक नहीं दे पाया था। और थोड़ा सा तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भी है कि तुम्हारी तबीयत थोड़ी डाउन है, ऐसा चेहरे से तुम्हारे लग रहा है। सर, और कुछ नहीं। और कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा डाउन जो यहाँ पर दिख रहा है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन है, तो डाउन क्यों, उसका रीजन मुझे पता है। उसका रीजन क्या होता है ना, यूज टू नहीं हो पाया अभी। फर्स्ट मॉक के वजह से हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज ना हमें जब ट्राई सर। यस, ठीक है, प्रेशर तो लेना ही नहीं है, प्रेशर तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, कीप इट अप। चलो, ओके ओके जी। तो गाइस हम लोग जब बार बार मॉक देंगे ना, तो हमारा जो यूज टू नेस है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और वो आप लोगों को इंटरव्यू में बहुत निखर के आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज हु इज रेडी, मिस्टर प्रथमेश। Yes, sir. Okay, ready? Yes, sir. Okay, after Prathamesh will come with Mr. Darshan and then Sujan Kamble. Okay, just a minute, Darshan ji, कहाँ गया आपका mock? Okay, sir, Prathamesh ji. Okay, great. Yes, perfect. Now, Mr. Prathamesh, I think Prathamesh, this is your second mock, if I am not wrong. Yes. Yes. Right? Okay. Yes. Now, Mr. Prathamesh, introduce yourself. Good evening, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Prathamesh Sopan Vanjay. I am from Pune. I did my graduation in 2021 from Savitribai Phule University. After completing B, I joined Nistec Engineering Company as a structural detailer in a precast sector. In there, mainly I work on precast members like double T, spandrel gravity column, ramp beam, shear wall. What is the length we can provide for double T section? For casting or for casting? There is a 500 feet long bed. Correct. And suppose I need to create the beam. What size of beam I can choose in SCT, hollow beam? What size we can consider in precast section? Getting my question? Suppose you have a beam, what size of beam we can consider in precast? Hollow section, sir. Yes. It's around minimum. It's around to 15 feet to like 20 feet, 25 feet. What is the advantage and disadvantage of precast construction? Advantage is the load we applied on those member is more. Yes. Advantage and disadvantage both. Load bearing capacity is more than any another structure, like we compare to RCC. Okay. And disadvantage? Very costly. Very costly. Okay. Means if we compare with RCC, how much? 10x. Not 10x. Not sure, sir, but I think 2x. 2x is 10. 2x. Actually, main spend is related to transport. Yes, sir. Transport is the main problem for precast. Otherwise, it's approx to 1.5. Hello. Hello.
Am I audible, sir? Yes, you are. Okay, let's come to RCC. Now, Mr. Prathamesh, what do you know about StatPro? StatPro is a structure analysis program. We can analyze the structure and design the structure in that software Okay. with various type of loads: dead load, live load, wind load, seismic load. What is seismic load? Seismic, there is two part in seismic load. Static dynamics? Static and dynamic, static load and dynamic load. Which one you know? Static load. What is static load? Static load is act from two direction, and dynamic load is act from 360 degree of any structure. Okay. Why should I hire you, Mr. Prathamesh? You should hire me because I give unique combination of skills and experience. How many lectures you watch, Prathamesh? 40 lectures you watched. Prathamesh, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा डाउन अभी और है, अभी और वर्क करना है ना आंसर्स पे, लग रहा होगा ऐसा ना? इंग्लिश की वजह से। हाँ, इंग्लिश की वजह से। और इंग्लिश कैसे होता है ना, इंग्लिश की एक्चुअली जरूरत पता है कब होती है? जब जनरल टॉक होती है। ये है इंटरव्यू टॉक, तो ये फिक्स है ना कि तो पूछा ही जाता है, कोई नया नहीं था, है ना? याद आ रहा है सर सब, पर हाँ, बोला नहीं जाता। तुरंत बनाना है, तो ये तुरंत कब बनेगा ना? कोशिश किया करो, छोटी छोटी किताबों को पढ़ा करो प्रथमेश, ठीक है? इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर एवरीवन, ठीक है? मैं क्या करता हूँ, मुझे ज्यादा समय नहीं मिलता है, ठीक है? ऐसा नहीं मैं 10-15 घंटे पढ़ता हूँ। आजकल मैं ये पढ़ रहा हूँ 15 मिनट 20 मिनट सामने रखता हूँ, तो जैसे खाली हुआ तुरंत अच्छा एक और पढ़ लेता हूँ, एक और पेज पढ़ लेता हूँ, तो इंटरेस्ट भी आने लगता है। प्लस इससे क्या होता है, शब्द को बनाने की शैली बन जाती है। जैसे कि अभी मैं फेसबुक पर कोई पोस्ट डालता हूँ ना, तो कैप्शन होता है ना, कैप्शन, पता नहीं कैसे कैप्शन में अपने आप मेरे अंदर से कुछ ना कुछ लाइनें निकल जाती हैं। अभी तुरंत बोलोगे तो मेरे कुछ नहीं याद है, ठीक है? बट कैप्शन जब लिखने लगूंगा तो याद आ जाती हैं। उनमें मेरा कोई रोल नहीं है, इन किताबों का रोल है कि कुछ पढ़े रहते हैं, कुछ जोड़ देते हैं, समझ गए? तो कुछ ऐसे किताबें खास तौर से इंग्लिश की पढ़ के रखा करो, जिससे कि सेंटेंस बनाना इजी हो जाता है। तुमने देखा होगा अगर तो अभी जो लोग मराठी न्यूज़पेपर रोज पढ़ते हैं, पुराने लोगों को देखना, कोई तुम्हारे कलीग में होंगे, वो बहुत अच्छी मराठी बोलते होंगे, ऐसा देखा? ग्रामर उनका बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, क्लिष्ट एकदम बोलते हैं और लगता है ये कौन सी मराठी है, ठीक है? जबकि तुम देखते हो कि एक गांवटी मराठी है और एक सिटी वाली है, ठीक है? लेकिन उनकी जो मराठी आती होगी प्योर आती होगी, ठीक है? ऐसे ही जब हम लोग हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मेरे फूफा जी हिंदी के बहुत अच्छा उनका नॉलेज है, जब वो हिंदी की बातें लिखते हैं वो चैट पर, तो हमें पहले सोचना पड़ता है बोल क्या रहे हैं, हिंदी के लिए सोचना पड़ता है बोल क्या रहे हैं, ठीक है? तो ये क्यों होता है? क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन वो न्यूज़पेपर का वो संपादकीय का एक पेज आता है, अगर तुम लोग ने ध्यान से देखा होगा तो रोज पढ़ते हैं उसको, एक एक लाइन पढ़ते हैं, वो इंटरेस्ट है उनका। तो मतलब कहना ये है कि कम्युनिकेशन के लिए थोड़ी सी बुक्स पढ़ोगे तो स्वाभाविक सी बात है, खजाने में कुछ वर्ड्स रखे होंगे तभी तो निकाल के लेके आओगे, ठीक है? इस गल्ले में पैसे हैं, इस गल्ले में पैसे हैं, तभी तो निकाल के लाओगे, ठीक है? उन पैसे को इकट्ठा करने के लिए कई ढेर सारे पढ़ने पड़ेंगे, उसको करो। बाकी मुझे समझ में आ गया, देखो मैंने खुद बता दिया ना कि सेकंड मॉक है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा अप है, बट परफेक्ट नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम इसको और परफेक्ट करना, और डरना मत। जैसे और लोग होते हैं ना, मैं उनको बहुत बेकार आदमी समझता हूँ जो डर जाते हैं, तुम डरते नहीं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। चलो, now next is who's ready? Now Mr. Darshan is ready. Okay, you can off your video, ठीक है? Mr. Darshan is ready now. Darshan is there? Okay, he is not there. Okay, Mr. Kamble. Mr. Kamble, Hello. ready? Good evening, sir. Good evening, good evening. On your video, if possible, if there is any problem, you can just tell us.
Okay, no issue. Very good. Okay. Sir, background. No issue. Background doesn't matter for me. ठीक, I just want to check your confidence. मुझे बैकग्राउंड से कोई नहीं, अंधेरा भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तुम्हारे अंदर ये गट्स होना चाहिए कि मैं वीडियो ऑन करके इंटरव्यू दे सकता हूँ, बीच में प्रॉब्लम होगी तो ऑफ कर देना, बस स्टार्ट वहां से करो। क्लियर? तो बेटर Yes. यू कैन सिट समवेयर। मुझे लगता है तुम बाहर कहीं पर हो, तो अगर बैठने का कोई अरेंजमेंट है तो बैठ सकते हो, लेकिन अगर ओके हो तो बैठा कर हुआ सकते सर हो। बाहर। अच्छा बैठे हो तब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, नाउ मिस्टर काम्बले, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good evening, sir. First of all, thank you for giving me opportunity. My name is Srujan Vinodrao Kamble. I am from Amravati. I have passed my graduation from Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, in 2017. After passing my graduation, I have working as a surveyor in Amravati for taxation purposes. I have worked there only for 3 months, and there is no civil engineering work related. That's why I left, and after that, I have joined to civil engineering firm in my town. There, where I have trainee engineer, and I have learned. I have worked in AutoCAD related work, drafting, submission drawing, working drawing, estimation, and execution, layout. After that, I have joined to um, road construction firm. Where I have working in Pradhan Mantri Gram site engineer and also work as a quality engineer. After that, I have left and I have working. I have studied for government preparation. After that, I have joined private limited company in Nagpur, where I have working as a quantity surveyor. Also, I work as a billing engineer and as a site in charge. After lockdown, I have to left my job, and after that, now recent last year, I have joined in MJP, that is water supply related work, and overhead water tank construction and water supply scheme is there. Due to salary issue, I have left this job in 2 to 3 months. Now I have working as a government contractor and also town planning and private works and some RCC designing work. So you're taking by from your own, or you're working with some manners? Working for private work. Means this is your own, or you are working with some company? Work from home, sir. No, Self no. This is your own work, right? You are just taking the own work. contract. You are just taking the contract, right? Means Hello. yes. Means this is your own contract. Yes, sir. Okay. What's your pass out year, Kamble? Because when I just 2007. 17 or 7? 17. 17. 17. Your career was too much confused, like from one side, again you guys go to billing, then go to government job preparation, then go to water tank, then again you go to contract. Why? What was it? Sir, I want to learn everything about related work. So when you going to left our company? Which companies? Means if I'll hire you for the BEAM, in how many months you going, because you need to get the experience from other sectors also, na? So how many Yes, months sir. you going to continue our organization? Now, sir,
I like to work in designing field. So I have to switch my career in designing. Okay, so this was not the right answer. So, कामले ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मैं सबका एक्सपीरियंस ले रहा था, बोलेगा फिर इसका भी एक्सपीरियंस लेके गायब हो जाएगा ये. Got it? You can say कि I was not finding the right path. रीजन Yes. तो यही है ना, रीजन तो यही है. मुझे नहीं लगता कि रीजन ये है कि वाटर टैंक में भी काम करूंगा, इसमें भी काम करूंगा, इस सर्वे में भी काम करूंगा, 2 महीने बाद छोड़ दूंगा. ये इंप्रेशन को खराब कर रहा है ना. फर्स्ट थिंग, यू डोंट मेंशन देयर 2 मंथ्स. ठीक है, इफ यू वांट टू डू द जॉब, अगर अपना करना चाहते हो तो बेधड़क करो, कोई दिक्कत नहीं है. Got it? So don't mention the two to 3 month jobs. Even if better, you can just say कि I was not in that job. खत्म. जॉब मत दिखाओ, बट जॉब दिखाओ तो प्रॉपर दिखाओ. ओके, एटलीस्ट 6 month स्टेबिलिटी इज द Okay. इम्पोर्टेंट. ओके, फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग, यू Yes. कैन से कि आई वाज नॉट फाइंडिंग द राइट पाथ. एंड when I realized कि when I started my preparation in BIM, sorry, in structures, I feel much interest in that field, and I feel कि I think this is the right path for me. I can make my career very well here, so I just continue my career in this industry. ठीक है. और ये जो Yes, लास्ट वाला sir. है, कॉन्ट्रैक्ट वाला है, ये मत बोलो अगर जॉब लेना है तो. नो वन इज गोइंग टू कंसीडर यू एज अ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज फ्रॉम दिस सेक्टर. कोई रखेगा बताओ? ठीक, कल को बोलेगा ये मेरा ही कॉन्ट्रैक्ट लेने लगेगा लड़का. राइट कमले? तो इट्स Right. बेटर यू कैन से कि आई एम वर्किंग फॉर समवन. ठीक है, इट मे बी तुम शो कर दो कि किसी की कंपनी है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ एज वट एवर यू टेकिंग द प्रोजेक्ट्स. क्लियर? इट इज फार Yes. बेटर देन Okay. यू कैन से कि दिस इज योर ओन. If you say own, that means they are not going to hire you. Clear? Maybe you can misguide their clients, misguide their colleagues, and उससे उनको रिस्क होगा, इसलिए they are not going to take this risk. Okay, Mr. Kamble, what is the use of StatPro software? StatPro software is used for design a steel structure and building structure and timber structure. And timber structures. Okay. What are the important IS code for RCC structure designings? For RCC structure designing, IS 456-2000 is used for concrete, and IS uh, IS 1893 for a seismic design. IS 875 Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 for dead load, live load, wind load, snow load design. IS 800 for steel design. Apart from IS for SP for road construction. Okay. What is the difference between LSM and WSM? LSM is limit state method and WSM is working stress method. In LSM, factor of safety in WSM, factor of safety is high as compared to WSM. WSM method is means structure is heavy and costly, and LSM method is lightweight structure and economic structure. Okay. How many lectures you watch in StatPro, Mr. Sujan? Up to 40. Up to 40 you watched. Okay. And what's your major project? What are you making right now? Your major project? Sir, I have prepared for a circular building for school or college. Okay. That was the ring, right? Yes. Okay. Thank you so much, Sujan. This was nice to talk with you. One last question: how much you rate yourself out of 10 in StatPro? Sir, out of 10, I have rated myself 8. 8. And in AutoCAD? In AutoCAD, sir, 10 out of 10. What is the use of purge command in AutoCAD? Merge command? Purge. For purge. Hello?
Yes, purge command. Sir, I don't remember. But Sir, you just said I 10 out of remember 10. merge command. You just give your marks out of 10, 10. That means you know everything about AutoCAD, na? Yes. What is the use of data extraction command in AutoCAD? Not remember. So no one is 10 out 10 out of 10. Okay, maximum you can rate 8. It's max. क्लियर? चलो, Yes. क्योंकि हम सब कुछ नहीं जानते ना, ठीक है। वैसे पर्च कमांड तो जानना चाहिए। पर्च कमांड का काम होता है अनवांटेड फाइल को रिमूव करना, बड़ी फाइल में से अनवांटेड फाइल को रिमूव करना, डाटा एक्सट्रैक्शन से कंप्लीट डिटेलिंग निकालना उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, उस पर्टिकुलर प्लान का, उसको बोलते हैं डाटा एक्सट्रैक्शन। फिलहाल जानना चाहिए, लेकिन और भी बहुत सी चीजें तुम नहीं जानते ऑटोकैड के बारे में, या फिर हम नहीं जानते, ऐसा नहीं कि हम भी जानते, ठीक है। तो वी कैन जस्ट रेट आउट ऑफ 10 Yes. 8 इज द लाइक सेफेस्ट पोर्शन। ओके, Okay. sir. चलो, ओके जी गाइस। Thanks. ओके जी गाइस, दर्शन इज रेस्ट। दर्शन, क्या तुम्हारा नेटवर्क बार बार जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है क्या तुम्हारे साथ? हाँ सर, वो एक्चुअली मेरा मतलब लैपटॉप का इशू थोड़ा, चार्जर कनेक्ट किया तो नेटवर्क वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो हाँ, मैं देख रहा हूँ बार बार प्रॉब्लम है। आ रहा है, बार बार जा रहा है ऐसे नेटवर्क तुम्हारा। पिछले 4 माह से मैं वो मतलब ट्राई कर रहा हूँ उसको फिक्स करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा अभी मोबाइल से कनेक्ट। मोबाइल से तो मोबाइल से ही मॉक दे दो ना, क्या दिक्कत है? मोबाइल से कैमरा ऑन करके एक जगह बैठ के आराम हाँ से सर, इंटरव्यू दे दो। हाँ सर, लेकिन थोड़ा लैपटॉप पर का भी मतलब प्रैक्टिस हो जाएगा तो। आई अंडरस्टैंड, बट अभी हमारे पास जो है उससे हम क्या कर सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इससे अभी ट्राई कर लो अभी इससे, लेकिन कैमरा ऑन करके करोगे ना तो यू फेस्ड वेरी वेल कि हाँ यार चलो अपन मजे से। देखो अभी सृजन के पास बेचारा अभी देखो बैकग्राउंड नहीं था, वहां से दे लिया, ठीक है। तो वो भी एक एक्सपीरियंस है कि हमारा अच्छा ही जाने वाला है ना। बाकी हाँ, यस लैपटॉप से करोगे तो वो तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। ऑलरेडी तुम्हारा देखो ये थर्ड मॉक है, याद है? यस सर। मुझे हाँ याद है, सर। देखो। ठीक है, वैसे मॉक और हो गए हैं, बट तुम्हारा ये कैमरा वाला जो मॉक है 3 है, तीसरा है, राइट है? यस ठीक है। यस सर। तो इसलिए हमें ठीक है, लैपटॉप को ऑन करना चाहिए, लैपटॉप से और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जैसे कि मैं पहली बार जब ऑन किया था लैपटॉप से, तो हमारा पहले स्काइप होता था। अब तो स्काइप बहुत कम लोग यूज हाँ करते हैं। तो मेरा पहला जो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, अब उसमें हमें स्काइप चलाने का ही आइडिया नहीं है। इमेज बहुत ख़राब हो रही थी। चलो वो अच्छा आदमी थे, मैनेज कर लिए। क्या होता, मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ सर माइक कहाँ से ऑन करते हैं? अब वो उधर से चिल्ला रहे हैं, नीचे देखो वहां पर एक माइक का ऑप्शन होगा। अब पूरा इंप्रेशन खराब हो रहा है ना, ठीक है। उस ऊपर से क्योंकि उस समय पर वाईफाई नहीं होता था इस तरीके से कि एकदम धुआं 200 रुपए का 1 GB इंटरनेट। किसी को बोल रहा हूँ यार देखना अंदर कोई आए ना, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। रीजन कंपनी के अंदर दे रहा था। तो वो भी एक यस अलग सर। इंप्रेशन है कि मैं इधर आंसर कर रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ कोई आया तो नहीं है। पता चला ये नौकरी तो मिलने से रही, वो भी चली गई तो खाऊंगा क्या? ठीक है, वो भी एक टेंशन। तो कुल मिला के इस तरीके से स्ट्रेस में इंटरव्यू देना टफ होता है। चलो, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच इज नॉट मेंशन इन योर रिज्यूमे। यस सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू for giving me this opportunity to introduce myself and for giving your precious time to me. Uh, as in my resume, my name is Darshan Zawke. I am from Digras, which is located in Yatmal district from Vidarbha. Currently, I am in Kirik Enterprises as a senior engineer, where as I work as a junior engineer, but my position is of site in charge, in which I am in charge of one project, which is a G+7 project, in which ground and first floor is a commercial and remaining floors are residential. Um, so, as a in charge of this project, my responsibilities are for procurement of material, approval of structural and architectural designs, uh, and many more things such as planning, scheduling, costing, and budgeting. So I do all that things thoroughly on this project because project is not so much big. It is only G+7 in Kothur, Pune. ओके, नाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ।
Yes, sir. My name is Darshan Bhaskar Zavke. I have done my B.Tech in Civil Engineering from Babasaheb Naik College of Engineering, Pusar. Then I done internship at Eagle Infra India Limited, which was a highway project, which was a package of 1200 CR in Pusat. Then uh, I work in Kirik Enterprises. Currently, I am working in Kirik Enterprises as a junior engineer, and I have expertise in AutoCAD, SketchUp, StatPro, then MSP, Microsoft Project. So I work in MSP from last 2 years. I'm working in MSP from last 2 years. My final year project was also in MSP, which in which we have done project management of G+3 residential plus commercial site, which in which we have given a schedule and cost cutting schedule for that project to the client. And then I am currently doing in Kirik. Okay. For which position you applied for our company? Sir, I have applied for a structural engineer, junior structural engineer. But you not explain anything about your structure engineering. Sorry, sir. I have also done a internship at Unix Civil, in which we have done various projects that are residential, and also done a steel project. In a residential project, we have done a school building, we have done a hotel building, which was my one of the favorite projects, in which we have designed a hotel, which is a G+8 for seismic loading and wind load in StatPro. करेक्ट. देखो, हमेशा जिस चीज के लिए हम आए हैं उसको दिखाओ. जिस चीज का उनको यूज ही नहीं है उसको दिखा के क्या फायदा होगा, है ना. और प्लस वो दिखा के मुझे ये समझ आ रहा है तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो उधर भाग रहा है, हमको तो ये समझ आएगा ना. तो फिर मैं तुमको हायर भी कर लिया, तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं और है, तुम अप्लाई किसी और चीज के लिए किए हो, है ना. तो हमें गाइस सबके लिए ये दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन. यू जस्ट एक्सप्लेन मोर अबाउट योर ट्रेनिंग्स. व्हाई मोर अबाउट ट्रेनिंग्स? क्योंकि इसी रास्ते जाना है ना, ठीक है. तो जिस रास्ते जाना है उसको खूब एक्सप्लेन करो. हाँ, बाकी चीजों को साइड लगा दो कि हाँ बता सकते हैं, इफ दे आस्क एनीथिंग मोर अबाउट दैट तो यू कैन जस्ट एक्सप्लेन अबाउट दैट, ठीक है. फर्स्ट प्रेफरेंस इज स्टैट प्रो को घोल के दम उनको ऐसा दिखा दो कि मेरा जो पूरा पैशन है वो स्टैट प्रो को लेके है, राइट. ओके. हाउ मच यू रेट योरसेल्फ आउट ऑफ 10 इन स्टैट प्रो? Sir, 7. 7. How many lectures you watch? Sir, 39. 39 lectures you watch. And you've done ASIS project? Yes, sir. I have done Ashish project. Okay. Instead, analysis and design both. What's your major project? My major project is sir. I have changed. Firstly, I think to do a G+28, but it is not possible. I think after doing Ashish project, so I have done G+8. Okay. Yes. What's your Sally expressions? Sir, as per my skills and my previous experience and my skill sets, as I told, I have expertise in AutoCAD, Style. I can also know SketchUp, and also I had to work on MSP. So, as per this industrial basis, I am expecting. देखो ये क्यों फंस गए, पता है? क्योंकि इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस अपने पास नहीं हुआ है ना. दिस क्वेश्चन वाज न्यू फॉर यू, तो यू जस्ट फील कि अभी क्या बोलूं इसमें, ठीक है. तुम घुमा रहे हो, इधर उधर लेके जा रहे हो, बट क्लियर नहीं बोल पा रहे हो, राइट. तो फॉर दैट इफ यू प्रिपेयर वेरी वेल, ठीक है, बिफोर इंटरव्यू, टेंशन ही नहीं है. इसका मेडिकल स्टोर पर कभी गए हो, उसको कुछ दवाई दो, अपने को तो उसकी नाम समझ नहीं आएगा क्या लिखा है, वो बंदा बस जाएगा खट से ऐसा निकालेगा बॉक्स से, ऐसा लगेगा उसको रटा हुआ है. ऐसा होता है ना. तो वैसे ही हमें रटा रहना चाहिए हर क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर्स, बिकॉज दीज आर द फिक्स क्वेश्चंस, ठीक है.
दैट्स इज मिस्टर दर्शन, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस सही है, बॉडी लैंग्वेज सही है, बट इन क्वेश्चंस पर हमें बार बार यूज टू होना है, ऐसा लगे कि नेचुरल निकल लग रहा है, ठीक है। Yes, ओके, थैंक यू सो मच दर्शन, सो नेक्स्ट टॉक विद यू, नेक्स्ट टाइम ट्राई करो कि लैपटॉप से आप आ सको तो बेटर रहेगा। ओके, yes, sir. Thank you. ओके, नाउ यस, आप अपना स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं तो यू कैन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। और गाइज आज आपको प्रोजेक्ट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपके मेजर प्रोजेक्ट की प्लानिंग आपको करनी है, तो आप अपने मेजर प्रोजेक्ट का पहले प्लान रेडी कर लीजिए आज, और बस दो लेक्चर, चलिए एक ही लेक्चर कर लीजिएगा, ठीक है। अरे यार ये तो बंद करो ऊपर से, ये तो और दिक्कत है, नेट ऊपर से इधर इधर से इधर से, ये हाँ, नेट ऑन करके सॉफ्टवेयर चलाते हो तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ अब बताओ, ये विंडो है, इसको एक मिनट, ये देखो तुम्हारा यहाँ पर जाओ, तुम्हारा पता है क्या ऑन है, ये ऊपर जाओ, ये पैरामेट्रिक देखो, ऊपर पैरामेट्रिक लिखा है, ऊपर इंसर्ट एनोटेट पैरामेट्रिक, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हारा पैरामेट्रिक ऑन है, तो पैरामेट्रिक से सारा इसी से डायमेंशन किया है क्या तुमने, ये सर वो डिलीट कांस्टेंट कर दो, ऊपर से वो पट्टी को खींच के साइड कर सकते हो, पैरामीट्रिक में क्या सर, ये हाइड और करने का? हाइड कर दो, हाँ हाइड कर दो, लेकिन तुमने डायमेंशन इसी से किया था क्या पूरा? नहीं सर, सिर्फ इसमें आ रहा है, वो जो टूल पैलेट से लिया ना, हाँ हाँ, अब अच्छा, उसमें आ रहा है। अब कोई दूसरा बॉक्स बनाओ, इसे कोई ऐसे रेक्टेंगल बना लो, तो छोड़ दो इसको, दूसरे में इसको छोड़ दिया सर, दूसरे में नहीं आ रहा है प्रॉब्लम कुछ। तो छोड़ दो उसको, अगर एक में प्रॉब्लम आ रहा है तो। यार ज्यादा देर ऑटोकैड को और नेट सर, चला के मत चलाओ, जल्दी से पूछ लो, बंद हो जाएगा तुम्हारा ऑटोकैड। हाँ और पूछो। सर ये और ये लाइन देखो, ऑन है। एक मिनट देखो देखो, मैंने बोला था तुमको, वो चीज तुमने ठीक नहीं किया, नीचे ऑर्थो के बगल वाला देखो, ग्रिड ऑन है अभी भी तुम्हारा, उसी से तो दिक्कत हो रही है। ये बस हो गया, और अब तो के अब हो बगल गया हो गया हो गया हो गया, बस अब जाओ, अब चाहे जहाँ रखो कर सब काम होगा। सर, और तो 0 डिग्री आ रहा है सर इधर। एक मिनट, तुम्हारा व्यू गलत है, वो देखो ऊपर कस्टम व्यू पे तुम हो अभी, वहां पे टॉप व्यू करो, ओके, एक मिनट। राइट क्लिक करके कैंसिल करो, पहले कमांड कैंसिल करो, स्केप बटन या राइट क्लिक से, हाँ कमांड कैंसिल करो, हाँ अब बनाओ, ओके, हो गया सर। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था, दूसरा प्रॉब्लम ऑर्थो के बगल वाला, जल्दी से बंद कर दो ना, तुम्हारा नेट वो हो जाएगा, क्या नाम है, ऑटोकैड बंद कर दो फट से, नेट रिजेक्ट हो जाएगा ओके तो सर। बंद हो जाएगा ऑटोकैड। चलो ठीक है जी, तो गैस थोड़ा बहुत आपको मजा आया होगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिला होगा, एक रिटन टेस्ट प्लान कर रहे हैं आपके लिए स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। उस रिटन टेस्ट को बहुत जल्दी आपके साथ देंगे, उसका पहले स्टडी मटेरियल आपको दे दूंगा, अगर जो भी एक्स्ट्रा लगेगा, और जो सीख चुके हैं उसमें ज़रूरत नहीं है, जैसे में सेस्मिक है, विंड है, तो इनको हो सकता है मैनुअली कैलकुलेट करना पड़े, तो प्रॉपर एक रिटन टेस्ट बना रहा हूँ, शायद कोशिश करूंगा इस हफ्ते बन जाए, तो नेक्स्ट मंडे को या फिर इस सैटरडे को अपन करेंगे। आज आप सिर्फ अपने मेजर प्रोजेक्ट का प्लान बनाएंगे, और लेक्चर नंबर 43 तक जो नहीं पहुंचा है, और 42 तक कर लीजिएगा, ठीक है, 42 तक क्या बोलते हैं आप पहुंच जाइएगा। आज आपका स्कोर कम हो गया दर्शन, आज आपका स्कोर है 5, अनिरुद्ध का है 6, नरेंद्र का है 6, यश का है 4.5, प्रथमेश का है 5, सृजन कामले का है 5.5, और दर्शन का है 5। दिस इज द स्कोर्स गाइस यू गेट टुडे, ठीक है। और आज आपको सिर्फ प्लानिंग रेडी करना है, और प्लानिंग कल प्लान सबको भेजना है, प्लान रेडी करना है, और दूसरा छोटा सा काम करना है, लेक्चर 40 जैसे नरेंद्र वॉच कर चुके हैं, कुछ लोग 41 तक हैं, तो आप बराबर आ जाएं तो फिर आगे चलते हैं। स्टेट प्रो इज नियर टू फिनिश, बस आप प्लानिंग रेडी कर लें, फिर हम कल सोच रहे हैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो पर वर्क करा के एक रिटन टेस्ट लेके आगे बढ़ चलते हैं, फिर ई टैब्स में एंट्री कर सर, देंगे। यस अनिरुद्ध हेलो बोलो, सर। फ्लोर डायग्राम, अनिरुद्ध कुछ बोलना चाह रहे फ्लोर हैं? डायग्राम। यस अनिरुद्ध, पहले आप बोल दीजिए, फिर उसके बाद यस बोलेंगे। यस अनिरुद्ध बोलिए। सर जो सर जैसे हम होटल का करते थे, तो उसका होटल का नेट पे कुछ मिल नहीं रहा है सर, एग्जैक्ट डाटा तो चाहिए अपने। प्लानिंग चाहिए, प्लानिंग, हाँ सर, वही जैसे स्टैंडर्ड रूम साइज क्या, कितने बाय कितना क्या देना क्या चाहिए। बात करते हो, होटल का मिल जाएगा यार, नहीं सर, वो नहीं मिला सर। होटल देखो, होटल गाइडलाइन
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से मिल जाएगा। नहीं सर, उस पर देखा वो नहीं है सर उसमें। अच्छा, उससे प्लानिंग का नहीं है। नहीं सर, उसमें बस दिया है कितने देना है, क्या क्या होना चाहिए। अच्छा, तो देखो कैसे होता है ना, होटल का जो रूम होता है ना, वो पूरा बिल्डिंग की तरह ही जाता है। वो डाउनलोड कर लो ना, एनबीसी नेशनल बिल्डिंग कोड। ठीक है, सर तो उसके उसका भी नहीं है सर। क्या एनबीसी में क्या नहीं, मतलब एनबीसी में दिया नहीं है ऐसा बोल रहे हो? हाँ सर, उसके मतलब दो तीन कोड है, फिर बाकी पेड कोड है दो। हाँ, मतलब एक फायर सेफ्टी वाला है, फूड एंड नहीं होटल फूड में चाहिए सर्विसेज। चाहिए क्या अपने को? केवल रूम साइज ही चाहिए ना, केवल रूम हाँ साइज। सर। तो बस हो गया, स्टैंडर्ड रूम साइज डाल दो। ठीक है, ये देखो, अब ये अलग अलग रूम साइजेस तुमको मिल जाएंगे। फिट में लेना है फिट में ले लो। ठीक है, और क्या बोलते हैं, मैं तुमको देखता हूँ, अगर मेरे पास कोई होटल का प्लान रहेगा तो मैं शेयर कर देता हूँ तुमको। ठीक है, ये अब दिया एंड रहेगा, सर, थोड़ा सा मेहनत पड़ जाएगा मुझे लगता है, और नहीं मिलेगा तो हाँ रूम साइज तो मिल जाना चाहिए यार। हाँ बोलो, बोलो बोलो। एंड सर मैं चेक अपना प्लान शेयर करना चाह रहा था, थोड़ा आज सही है कि स्क्रीन नहीं तो। स्क्रीन शेयर करना चाहो तो कर लो, अभी ओपन नहीं कर हाँ पाएंगे सर। क्योंकि ऑटो कैड तुरंत ओपन करना ठीक नहीं है, नहीं तो नेट करप्ट कर देगा। हाँ सर, मैं शेयर हाँ कर। ठीक है। दर्शन कुछ पूछना चाह रहे थे क्या शायद? ये दर्शन पूछ लो यस जब। सर। सर वो स्टेयरकेस का लोडिंग एंड वो अभी पेंडिंग वाटर है, टैंक अपना का अपना पेंडिंग है, वो अभी हुआ ही नहीं वो टॉपिक। ठीक है, रोज पेंडिंग हो जा रहा है। चलो कल ही कर लेंगे उसको, ठीक है। हाँ सर। सर हाँ मैं सर, बोला एंड एक आप वो मैनुअल मैनुअल भी भेजने वाले थे स्टेयरकेस के लिए और वाटर टैंक के लिए। उसी मैनुअल से ही कराने वाला हूँ, जिससे कि सबको कॉन्फिडेंस आ जाए यस ना कि हाँ कहाँ से आता है ये। ठीक है, चलेगा। यस सर। हाँ जी, सर बताओ। एंड हेलो। आप दर्शन एक बस, दर्शन बस थोड़ा सा इनका क्लियर हो जाए फिर अपन करते हैं। हाँ, जस्ट अ मिनट, इनका देख लेता हूँ। हाँ बताओ अनिरुद्ध, हाँ सर, सर मैं पूछना चाह रहा कि क्या मेरी प्लानिंग सही जा रही है कि नहीं, क्या कुछ बना रहे हो गलत थोड़ा है। एक्सप्लेन करो ना। सर मैं होटल बना रहा हूँ G+5 तक का। हाँ एंड सर ये अपनी मेन रोड है जो अपनी ऑरेंज कलर की, फिर यहाँ से ये पार्किंग है, हाँ, फिर अपना ये मेन अपना होटल है सर। ओके, एंड सर इसके पीछे स्विमिंग पूल है सर। सही है। होटल का प्लान थोड़ा और अच्छा करो, क्योंकि रूम्स नहीं बनेंगे तो होटल का वो नहीं आएगा ना। प्लस ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर भी बनना है, सब बनना है ना। तो यस प्लान सर। थोड़ा सा और कुछ कर सकते हो तो करो। रूम्स ऐसे बनाओ जिसमें बाथरूम अटैच हो। ठीक है, और उसके बाद सर हर ये भी रूम। ग्राउंड फ्लोर ही है ना। अच्छा, ये ग्राउंड फ्लोर है ना, तो इसमें हाँ। रूम्स कम दिख रहे हैं अभी मुझे। सर ये जो अपना डाइनिंग एरिया है, हाँ ये अपने पार्टी हॉल जैसे जिसको किसी प्राइवेट में करना हो तो। हाँ हाँ एंड ये सर टॉयलेट है, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज के लिए अलग। हाँ ये अपने रोलर वाले डोर्स है जो जिससे अंदर आएंगे, अपने रिसेप्शन का एरिया है। हाँ। ये उनका जो भी टेक्निकल स्टाफ है उनका सामान वगैरह रखने के लिए। कुल मिला के रूम्स निकलने चाहिए, नहीं तो फिर उनको फायदा क्या होगा किसी को होटल बना के, समझ रहे हो? सर फर्स्ट फ्लोर से लेके फोर्थ फ्लोर तक रहेंगे ना सर। अच्छा, ऊपर के फ्लोर पे हाँ रूम निकालना चाह रहे हो? हाँ सर। चलेगा, एंड बस से। कॉलम का ध्यान देना फिर। अच्छा अच्छा। क्योंकि कॉलम दिक्कत करता है अगर ऐसे प्लान बना रहे हो तो। फिर ऐसे कॉलम, क्योंकि कॉलम तो थ्रू आउट जाएगा ना। हाँ सर, वही पूछना चाह रहा था कि क्या चेंज करना चाहिए कि प्लान रेडी इसी पे आगे करोगे तो रहना। आइडिया लगेगा, प्लान रेडी करोगे तो ज्यादा आइडिया लगेगा कि ऊपर के फ्लोर पे तुम कैसा बनाना चाह रहे हो। फिर क्या नीचे का कॉलम क्या ऊपर के कॉलम से मैच कर रहा है क्या? ठीक है, ओके सर। तो क्योंकि मेन दिक्कत यही होती है ना, जैसे हॉल है, अब हाँ हॉल में सर। कॉलम पास पास तो दे नहीं सकते, तो हाँ ऊपर का सर। रूम निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे, दिक्कत फंस गए। हाँ सर। ठीक है, यही प्लानिंग का मतलब, जो देखो ये तुम अपने इन पे क्यों कर रहे हो, इसका यही फायदा हो रहा है ना, कि अब तुम सोच पा रहे हो कि यार ये दिक्कत हो रही है मेरे साथ, कॉलम कहाँ हाँ सर। लगाऊं, है ना। तो एक बार जस्ट प्लान करो रेडी, फिर देख लेता हूँ कल कि कॉलम्स उसमें लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलेगा। ठीक है, ऑफ कर दो, बाकी प्लान सही है, प्लान में कोई दिक्कत नहीं। प्लान, ये प्लान मतलब ऐसा है ना कि आप इसको मेजर प्रोजेक्ट के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब दर्शन, यस दर्शन अपना कंप्लीट कर लीजिए भाई। यस दर्शन सर। अपना, हाँ। सर एंड आप बीम टू लेंथ टू डेप्थ रेशियो के लिए मतलब एक सॉल्यूशन देने वाले थे एरर अ, के लिए, अ, सॉरी वार्निंग के लिए। अरे हाँ यार, थैंक यू याद दिलाने के लिए। वो वाला मैं अभी तक देख ही नहीं पाया। लेंथ इंटू डेप्थ रेशियो का ना बहुत छोटा सा है,
बट मैं उसको जरूर कल ही करा दूंगा, ठीक है, पक्का कल करा दूंगा हाँ कैसे सर, भी मैं करके। देखने का कोशिश किया हाँ बेंटली मतलब वेबसाइट पे, और हाँ, कोरा पे भी मतलब सर्च नहीं किया, मैंने देखा ही नहीं, तो मतलब मैंने हाँ। देखा ही नहीं, मैंने मुझे एक्चुअली माइंड में नहीं था। वो वाला याद है, लिफ्ट वाला याद था, वाटर टैंक वाला याद था, ये याद ही नहीं था ये वाला। थैंक यू। ठीक है। और गैस जो रिटन टेस्ट होगा उसमें भी हम ये चीज़ें कंसीडर करेंगे, ठीक है। होप सो कि सैटरडे तक हो जाए। कामले साहब आप ना पूछ ले क्वेश्चन, फिर प्रथमेश पूछ लीजिए। हेलो यस कामले बोलिए। सर, किसी हॉल का जो स्लैब है उसमें सेंटर में जैसा डोम देना है, तो उसे उसके लिए क्या करना चाहिए? डोम तो नॉर्मल ही डिजाइन होने वाला है। तो उसे स्टैड में कैसा डिजाइन करना है और डिटेलिंग कैसे? ठीक है, स्टैड में उसको एफईएम से करना पड़ेगा, फाइनाइट एलिमेंट मेथड से। स्टैड उसका रेनफोर्समेंट नहीं बताएगा, स्ट्रेस बता देगा, खुद से रेनफोर्समेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तुम डोम बना लो, ठीक है, तुम अपना प्लानिंग रेडी कर तो लो। सर वो डोम रहेगा वहां पे, फिर बीम की जरूरत रहेगी? नहीं, डोम रहेगा तो उसमें बीम क्यों करोगे? बीम लगा दोगे तो गंदा नहीं लगेगा? अगर तो डायरेक्टली उसका रेंफोर्समेंट फिर जैसा कंटिन्यू आ रहा है वैसा डोम के इसमें वो सर्कुलर शेप में जाके फिर सामने स्ट्रेट चला जाएगा। करेक्ट, ठीक है। एक बार तुम डोम का तो मुझे रेडी, उसे रिंग बीम देना जरूरी रहेगा क्या वहां पे? रिंग बीम देना ही पड़ेगा, तभी उसी पे टिकेगा ना। हाँ, रिंग वही बीम पे ही पूछा। टिकने वाला है वो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, उमर साहब आपका प्लान बहुत अच्छा है, तगड़ा प्लान है आपका, बस इसको फिनिश कर दीजिए, बहुत मस्त है। ठीक है, आपने सिटी हॉस्पिटल बना दिया है, तो आप डन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका प्रोजेक्ट एकदम बेस्ट है। कल फिनिशिंग करके दे दीजिए, तो फिर आगे चला जाए। और ये यस, अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए भाई। यस। सर फ्लोर डायफ्राम आ रहा है कुछ? फ्लोर डायफ्राम वो तो बता देंगे, फ्लोर डायफ्राम तो ये तो नोट है ना, नोट का दिक्कत नहीं हाँ, है, तो उसका दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसको इग्नोर कर दो। और वो प्रथमेश होता आपका, क्या है सर लेकिन? सॉरी, फ्लोर डायफ्राम होता क्या है? वही वही टॉपिक है ना, मास्टर स्लैब का टॉपिक है वो, बता दो, वही बताना पेंडिंग है, इसीलिए बोला उसको इग्नोर कर दो। ठीक है, मास्टर फ्रेम जो बताओ टॉपिक है, जो अपन बताने वाले हैं उसी का टॉपिक का वार्निंग है वो, ठीक है। प्रथमेश अपना क्वेश्चन पूछ लो लेक्चर भाई। नंबर 38। लेक्चर नंबर हाँ 38, सर। हाँ। यस प्रथमेश बोलो। सर जो आकाश होटल है उसमें फसाड वर्क हुआ है पूरा, तो हाँ उसका लोड हम